Students, a very good morning to all of you. Today we are going to study about the design of water tank, which is your unit number one. Okay, so this is the part which is remaining to be completed from our syllabus. So it is from unit number one, and it is our design of water tank. Water tank. Actually, you are having in your syllabus the water tank that is rested on ground, that is supported on ground. Okay, then out of which you have two types of water tank in your syllabus. One is circular water tank and a rectangular water tank. And among both, your circular water tank is the one which is most commonly and frequently asked. Okay, so you will be studying about the design of circular water tank which is rested or supported on ground. Okay, now for the design of water tank, you need to refer the IS code, that is IS 3370 part 1, 2, 3 and 4. Okay, design of circular water tank consists of two types of roof over it. One is in the form of slab and the other one in the form of dome. ठीक है, एक स्लैब के फॉर्म में और एक डोम के फॉर्म में आपके वाटर टैंक आपको डिजाइन करने हैं. सर्कुलर वाटर टैंक, ओके, विच इज रेस्टेड ऑन ग्राउंड. ठीक है, तो अमंग्स बोथ डोम वाला जो है, दैट इज द पार्ट which is there in your syllabus. Okay, a circular water tank having a roof dome and rested on ground. This is the part which is available in your syllabus and being frequently asked in university examination. So without delaying and without jumping over the design steps, let's take an example of a numerical and let's discuss over the steps which is required to be carried out in the designing and analyzing process. Okay, so let's start with the design of water tank, which will be circular, consist of roof dome and resting on ground. Okay, what it says. So let's start with a numerical which says design a circular water tank of capacity 280 मीटर क्यूब. यानी कि एक सर्कुलर वाटर टैंक जिसमें पानी कितना आएगा 280 मीटर क्यूब. It is resting on ground having rigid joints. Having rigid joints. Resting on ground having rigid joints. यहाँ देखिए, यहाँ पे joints लगे हुए हैं. इस तरीके से यहाँ पर rigid joints लगे हुए हैं between the wall and the base slab. Okay, between the wall and the base slab. देखिए, resting on ground having rigid joints. At base, take the depth of water as 2.2 मीटर. देखिए कितना कैपेसिटी है 280 मीटर क्यूब और डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 2.2 मीटर. फ्री बोर्ड इज 0.3. डिजाइन द टैंक वॉल. टैंक का क्या डिजाइन करना है? टैंक वॉल, बेस स्लैब, spherical dome and ring beam. Now let's see the parts. Tank means tank wall means this part. Then base slab means this part. Then spherical dome means this part and ring beam means this part. These all are required to be designed. Actually, in your university examination, the question which is asked is either to design a dome and a ring beam or to design a cylindrical wall and a base slab. ठीक है? Either to design a spherical dome and a ring beam or to design a cylindrical wall, tank wall and a base slab.
So in this question, it is asked to design all the four parts of a water tank. Take sigma CBC. So here sigma CBC is given, that is 7 Newton per mm square. What is the sigma CBC? This is the permissible stress in concrete in bending compression. परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन. ठीक है, इसके लिए यहाँ देखिए, दिस इज या permissible stress of concrete in bending compression, that is called as sigma CBC. Okay, that is called as sigma CBC. यहाँ देखिए आप to denote किया by sigma CBC, value of which, देखिए, permissible stress of concrete in bending compression, that is sigma CBC, the value of which is given for different grades of concrete. For different grades of concrete अगर M20 लेते हो तो 7. ठीक है, so ये वैल्यू आपको याद रखना है. अगर गिवन नहीं रहेगा तो भी आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखोगे क्या दिया है और उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से वैल्यू चूज करोगे. मोस्टली आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 दिया रहता है, इसलिए 7 वैल्यू ही आएंगी हमेशा मैक्सिमम टाइम. ठीक है, then the value of sigma CP is given to you. What is this? This is the permissible stress in concrete, that is given 1.2. Impermeable stress in steel, that is 150 Newton per mm square. Okay. Then the modular ratio is given to you. What is modular ratio? It is the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete. ये आपने आरसीसी में पढ़ा है. ठीक है, इस मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी. 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी. Okay. Use IS method and draw reinforcement detailing. Use IS method and draw reinforcement detailing. So let's start with the design. Using IS method for the design of water tank which is circular, having dome over it and resting on a ground surface. So let's start with the given data. Height of water, head of water is given to you, that is 2.2. यहाँ देखिए 2.2. उसके बाद फॉर M20 सिग्मा CBC 7. इफ नॉट गिवन आप कंसिडर कर लोगे 7. कंक्रीट की स्ट्रेस 1.2, स्टील की स्ट्रेस 150, मॉड्यूलर रेशियो, फ्री बोर्ड एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, दिस ऑल आर गिवन टू यू. आप ऐसे टैंक बना लोगे. टैंक में आप डेप्थ ऑफ वाटर 2.2, ये बीम के लेवल तक वाटर लेवल डाल दिया आपने. उसके ऊपर फ्री बोर्ड बना लिया 0.3 का. ठीक है, कैपेसिटी मार्क कर दिया सेंटर से, दैट इज 280 मीटर क्यूब. यहाँ पे रिजिड कनेक्शन क्योंकि बोला हुआ है. यहाँ रिंग बीम बनाएंगे, ये डोम बनाएंगे. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर बेस स्लैब, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज बेस स्लैब. उसके ऊपर सिलेंड्रिकल वॉल, देन देयर इज अ रिंग बीम एंड देन देयर इज अ स्फेरिकल डोम. ओके, आगे चलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ रिजिड कनेक्शन which is a haunch given to you. Okay, अंदर से किया हुआ है rigid connection in the wall and the base slab. Now let's start with the first step, that is dimension of tank. Since volume of tank is given to you, that is 280 meter cube, and depth of water is given to you, 280 meter cube is the capacity. उसके हिसाब से वाटर कितना भरा जा रहा है, that is 2.2 मीटर. ठीक है, तो एरिया निकल सकता है, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट मीटर क्यूब अपॉन मीटर से आपको मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज द एरिया. अब आपकी सर्कुलर वाटर टैंक है तो सर्कुलर वाटर टैंक का एरिया 5/4 डी स्क्वायर. ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 12.73. उसको राउंड ऑफ कर लिया 13 मीटर स्क्वायर. मैं उसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, डिजाइन ऑफ स्फेरिकल डोम. अभी आपने क्या किया, सिर्फ एरिया निकाला और डायमीटर निकाल लिया.
आपने क्या निकाला? ये एरिया कितना है अंदर का, और ये अंदर का डायमीटर कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अंदर टू अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजाइन ऑफ डोम, जिसमें थिकनेस ऑफ अ डोम, इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ डोम। ठीक है, ये थिकनेस को डिजाइन नहीं करते क्योंकि डोम के ऊपर कोई लोड आने वाला नहीं है। इसको सिंपली आप अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 100 mm। ठीक है, राइज ऑफ अ डोम, नेक्स्ट इज राइज ऑफ अ डोम। ये देखिए डोम यहाँ से बन रही है ना, यहाँ से राइज हो रही है, तो ये राइज कितना रखना है। ठीक है, तो इसमें बोला है the rise should be taken as 1/5 to 1/8 times the diameter, 1/5 to 1/8 times the diameter। तो मैं छोटा हिस्सा पकड़ रहा हूँ, that is 1/8 times the diameter, 1/8 into 13, that comes out to be 1.63 मीटर। तो यहाँ से राइज होगा यानी कि इतना 1.63 मीटर। आई होप स्टूडेंट से क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ अ डोम, रेडियस ऑफ अ डोम, देखिए आपकी डोम स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल सर्कुलर होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे सेंटर रखता और यहाँ से डिवाइडर लेकर आप क्या करते थे, अगर सर्कुलर डोम बनाते तो यहाँ पे सेंटर रखते, यहाँ पे डिवाइडर रखते और इसको इस तरीके से डोम बनाते। लेकिन वो अननेसेसरी खर्चा होता है, उसमें क्या हो रहा है आपकी हाइट भी बढ़ रही है और फिर मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो हम स्पेरिकल डोम बनाते हैं। स्पेरिकल डोम बनाने के लिए मुझे सेंटर यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, तो यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं रेडियस मारूंगा, यानी कि यहाँ से ये एंड पकड़ूंगा और फिर ऐसे रेडियस से डोम बनाऊंगा। करेक्ट है, तो ये मेरा रेडियस रहेगा कितना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सेंटर पकड़ा हूँ, यहाँ से रेडियस मार्क किया और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरा ट्राइंगल बन रहा है। ये देखिए सेंटर से ये रेडियस और ये क्लोज, तो ये मेरा एंगल बन जाता है। करेक्ट है, दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज थीटा, इसका अपोजिट और ये एडजेसेंट। करेक्ट है, आपको अपोजिट पता है दैट इज 6.5 और एडजेसेंट पता है क्या? एडजेसेंट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज। क्या आपको पता है ये साइज? हाँ आपको पता है, मेरे हिसाब से कैसे, अगर ये आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है, स्मॉल आर इज योर राइज ऑफ डोम, जो कि आपको पता है 1.63, कैपिटल आर माइनस 1.63 करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं वही करता हूँ, ये निकालना है मुझे रेडियस, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर। करेक्ट, तो बस वही करूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर, 6.5 स्क्वायर प्लस आर माइनस 1.63 का स्क्वायर, आर माइनस 1.63 का स्क्वायर। अब इसमें मैं कैलकुलेटर में वैल्यू ये इक्वेशन डालूंगा तो मुझे सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगी आर की, जो कि आएगी 13.78। तो बोल रहा है ये डिस्टेंस है 13.78, यानी कि आप क्या करेंगे 13.78 लेंगे और ये कॉर्नर और ये सेंटर मिलाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको स्ट्रेच करेंगे और ये आपका डोम बन जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर रेडियस ऑफ डोम। अब सेंट्रल एंगल कितना है, ये एंगल कितना है नहीं पता, तो निकाल सकते हैं। आपके पास ये साइड भी आ गया है, ये साइड भी पता है और ये साइड भी पता है, तो कोई भी आप फॉर्मूला लगा लो, साइन का ही लगा रहे हैं। साइन क्या कहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लगाया, जहाँ दोनों भी अपोजिट और हाइपोटेनियस दोनों भी पता है मुझे, तो मेरा ये थीटा निकल गया। दैट कम्स आउट टू बी 28.15। आई होप स्टूडेंट से क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ सकते हैं हम।
नाउ आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इन डोम बेंडिंग मोमेंट डज नॉट एक्ट। बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली कैसे बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा जब लोड ही नहीं आ रहा है डोम पर, तो डोम पर बेंडिंग मोमेंट तो एक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रेचेस तो आएंगे क्योंकि हवा चल रही है, बट स्ट्रेचेस आर ऑकर, दो स्ट्रेचेस आर कॉल्ड एज मेरिडियोनल स्ट्रेच। मेरिडियन स्ट्रेच बोलो या मेरिडियोनल स्ट्रेच बोलो, ये बोला जाता है उसे, ठीक है। इन डोम बेंडिंग मोमेंट विल नॉट ऑकर, बट स्ट्रेसेस होंगे, वो स्ट्रेसेस को हम मेरिडियोनल स्ट्रेच कहते हैं, ठीक है। अब हम लोड कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक डोम के ऊपर क्या क्या लोड आएगा। एक तो उसका खुद का वो लोड आएगा, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ अ डोम। अब किसी भी चीज का सेल्फ वेट निकालना है तो उसकी डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डेंसिटी और क्या क्या है एक डोम में, डोम में साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, सिर्फ थिकनेस ही पता है हमको, तो डेंसिटी या यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय thickness, that is 25 multiplied by 100 mm, that is 0.1, it comes out to be 25 kilonewton per meter square, kilonewton per meter square, ठीक है। अब लाइव लोड तो वैसे कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस के लिए, सी, कोई भी टैंक जो बनी है क्लोज्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए कोई चढ़कर आके कैप खोलेगा और मेंटेनेंस करेगा, तो कभी कभी लाइव लोड आएगा। तो लाइव लोड भी हम जनरल नहीं पकड़ेंगे, 0.75 लेंगे, हम 1 नहीं ले रहे, हम 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो बस इससे ज्यादा तो कोई लोड आना नहीं है, तो सम कर लेते हैं, 2.5 प्लस 0.75 दैट मेक्स 3.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग, ये लोड किसे ऐड करेगा, ये ऊपर से आएगा, करेक्ट है, उसका खुद का लोड ऐसी ग्रेविटी के फॉर्म में ऊपर से आएगा, और लाइव लोड जो कोई चढ़ेगा उसका भी लोड ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो द लोड विल बी इन सच फॉर्म, ओके, जो कि डोम के ऊपर आके डोम से इस डोम पे इस तरीके से ऐड करेगा, थ्रस्ट के फॉर्म में, यानी कि फेंकेगा इधर, ठीक है, और इधर, ठीक है, अपने पेरीफेरी में आउटवर्ड साइड में वो फेंकेगा अपना फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, मेरिडियोनल थ्रस्ट, देखिए, मेरिडियोनल थ्रस्ट, इसको डिनोट कर रहे हैं हम टी से, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है आपको आईएस कोड में, आप उसको याद कर लो, आईएस 3370 में गिवन है, आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। द फॉर्मूला इज डब्ल्यू आर अपॉन 1 plus cos थीटा, डब्ल्यू आर अपॉन 1 plus cos थीटा, where W is your total load, R is your radius radius of dome, ठीक है, एंड थीटा तो आपने अभी निकाला 13.75 आया, ये देखिए, सॉरी 28.15 आया, ये देखिए 28.15, तो आप थ्रस्ट निकाल लेंगे, थ्रस्ट की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू आपका किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आर आपका मीटर में है, तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, आपको वैल्यू मिल गई किलोन्यूटन पर मीटर में थ्रस्ट की वैल्यू। नाउ आपके पास कोई फोर्स अवेलेबल है, तो आप उसका स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये यूनिट होती है ना। तो आप स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हो, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, या लोड अपॉन एरिया, लेकिन आपका लोड ऑलरेडी किसमें है, आपको देखो क्या करना पड़ता है, लोड अपॉन एरिया करना पड़ता है ना, लेकिन अभी आपका लोड जो है वो डायरेक्टली ऑलरेडी किलोन्यूटन पर मीटर में है, तो उसको डिवाइडेड बाय ओनली मीटर करना पड़ेगा, तो डायमेंशन क्या मैं एरिया लूंगा क्या, नहीं, सिर्फ एरिया का भी एक ही डायमेंशन लूंगा, वो कौन सा डायमेंशन रहेगा डोम में, वो डोम में उसकी थिकनेस रहेगी, तो बस वही करेंगे हम, डिवाइड बाई टी कर देंगे, यानी कि थिकनेस, वन डायमेंशन, तो 23.8 डिवाइड बाय 100
100 नहीं 0.1 करेंगे क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं, या उसको आप एमएम में लोगे तो कैसा 23.8 न्यूटन पर एमएम। ये न्यूटन पर एमएम भी हो जा रहा है ना, किलो न्यूटन मीटर बोलो या न्यूटन पर एमएम बोलो, वैल्यू तो यही रहेंगी। तो न्यूटन पर एमएम में ले रहा हूँ मैं 23.8 अपॉन 100, दैट मेक्स 0.238 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये यूनिट रहेगी इसकी। उसकी यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस मेरिडियनल स्ट्रेस शुड बी लेस देन सिग्मा सीबीसी। तो क्या आ रही है लेस देन? हाँ बिल्कुल आ रही है। दिस इज 0.238 एंड सिग्मा सीबीसी इज 7, सो हेंस इट इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग, यानी कि इसमें बेंडिंग वाकई में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेस ज्यादा होता तो हम कहते नहीं इस पर बेंडिंग आ रही, बट बेंडिंग आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर बेंडिंग आती तो आप क्या करते? थिकनेस को इंक्रीज करते, 100 mm जो ले रहे हो उससे ज्यादा कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनफोर्समेंट इन डोम स्लैब। रेनफोर्समेंट इन डोम स्लैब। यहाँ देखिए आपने डोम में क्या किया अभी तक, डायरेक्ट आप रेनफोर्समेंट पर आ गए, तो आपने किया क्या अभी तक डोम के लिए? सिर्फ डोम की, पहले तो आपने स्पेरिकल डोम के लिए थिकनेस अज्यूम कर लिया, राइज ऑफ अ डोम निकाल लिया 1/5 to 1/8 ऑफ डायमीटर करके, फिर रेडियस ऑफ अ डोम, ये रेडियस ऑफ अ डोम निकाल लिया, फिर ये थीटा निकाल लिया आपने, सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर जो लोड आ रहा है वो लोड निकाल लिया आपने, फिर थ्रस्ट और स्ट्रेस ये निकाल लिया, स्ट्रेस को चेक कर लिया बेंडिंग कंप्रेशन से, सेफ आ गया, बस दैट्स इट। यानी कि आपकी जो थिकनेस थी दैट इज करेक्ट, उसके हिसाब से जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम है काफी कंपेयर टू बेंडिंग कंप्रेशन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर डिजाइन ऑफ डोम। अब हम रेनफोर्समेंट पर आते हैं। रेनफोर्समेंट के लिए बोल दिया गया है एज द स्ट्रेसेस, यानी कि मेरिडियनल स्ट्रेस, एज द स्ट्रेस आर वेरी लो एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, एज कंपेयर टू दिस बेंडिंग स्ट्रेस, इसीलिए आप सीधा सीधा मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन डोम स्लैब। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला आईएस मेथड में वाटर टैंक के डिजाइन में गिवन है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ अ डोम फॉर एफई 250, 415 एंड 500 आर 0.3% बीटी, 0.24% बीटी एंड 0.24% बीटी। अब आप तो एच वाई एच डी स्टील यूज कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या है? 0.24% बीटी फॉर एफई 415 विच इज गिवन टू यू। देखिए यहाँ पे आईएस कोड ने, आईएस 3370 ने बताया हुआ है कि सिग्मा एस टी की वैल्यू 115 रहती है अगर एफ ई 250 है, और 150 रहती है फॉर एफ ई 415। तो अगर सिग्मा एस टी आपको नहीं गिवन है, एफ ई 415 गिवन है, तो आप सिग्मा एस टी अज्यूम कर लेंगे 150। और अगर सिग्मा एस टी गिवन है आपको दैट इज 150, तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्रेड क्या है, एफ ई 415। सो यू हैव योर ग्रेड एज एफ ई 415। तो ए एस टी मिनिमम आएगा 0.24% बी टी, तो उससे आप वैल्यू निकाल लोगे। फिर बी इज, अब बी डोम का बी क्या रहेगा? एक डोम का बी क्या रहेगा, यानी कि अदर डायमेंशन क्या रहेगा? उसकी लंबाई। अब उसकी लंबाई कैसे गिनूं जब वो स्फेरिकल फॉर्म में है? तो मैं उसको 1000 पकड़ता हूँ, उसकी लंबाई को मैं 1000 पकड़ता हूँ। 1000 इंटू टी, टी इज द थिकनेस। तो आपका ये ए एस टी मिनिमम आ गया। अब आप डोम के लिए बार अज्यूम करेंगे, तो डोम इज अगेन अ स्लैब, तो मैं अज्यूम करता हूँ 8 mm का बार। 8 mm का बार है तो मैं स्पेसिंग निकाल सकता हूँ, ए एस टी और 1 बार अपॉन टोटल ए एस टी मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आ गया आपका स्पेसिंग। तो ये आपका डिजाइन हो गया डोम का। प्रोवाइड 8 mm बार एट 200 mm center to center, hence provide 8 mm pie at 200 mm center to center in both ways, यानी कि ऐसे लंबे भी फैलाएंगे और घुमाएंगे भी, यानी सरकमफ्रेंशियली भी चलाएंगे और रेडियली भी चलाएंगे। ये देखो ऐसे जो ऐसे आ रहे हैं, देखिए जो ऐसे आ रहे हैं, सॉरी ऐसे आ रहे हैं, दिस इज रेडियली, और जो ऐसे घूम रहे हैं
दिस इज सरकमफ्रेंशियली। इन दोनों तरीके से आप 8 mm के बार डालेंगे इतनी स्पेसिंग से 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो आपका डोम का डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम रिंग बीम के डिजाइन पर। देखिए इस तरीके से थ्रस्ट पास हो रहा था, ठीक है। तो ये बीम पर एक्ट करेगा। तो बीम पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंक्लाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना ले रहा हूँ, दो कंपोनेंट्स बना ले रहा हूँ। अगर ये थ्रस्ट है टी, तो एक कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पे एंगल रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखिए ये एंगल आया कहाँ से, आपको ये एंगल सेंट्रल एंगल पता था थीटा, इसका ऑपोजिट यहाँ डाला मैंने। यहाँ देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब ये थीटा मतलब ये भी थीटा, ठीक है। ये हो गया थीटा। तो ये बचा हुआ क्या है, 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका थीटा। ये देखिए आप, ये थीटा है, तो ये अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये थीटा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 डिग्री पे आ जाता हूँ मैं। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, करेक्ट है। तो ये मुझे थीटा मिल गया। अब मेरा टी का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, दिस इज माय टी कॉस थीटा, और ये वाला टी साइन थीटा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब रिंग बीम पर आता है हुप टेंशन, इसको बोलते हैं हम हुप टेंशन, ठीक है। इधर आते हैं हुप टेंशन। अब हुप टेंशन का फॉर्मूला है पी डी बाई टू, एच टी, दैट इज हुप टेंशन इक्वल्स टू पी डी बाई टू। देखिए हुप टेंशन मतलब इसकी वजह से खिंचा हुआ आएगा, इसकी वजह से बीम पर खिंचा हुआ आएगा, ठीक है। इसकी वजह से डायमीटर को खींचेगा वो, है ना। तो हुप टेंशन का फॉर्मूला है पी डी बाई टू, वेर पी इज योर दिस पार्ट टी कॉस थीटा इंटू डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो टी कॉस थीटा में थ्रस्ट की वैल्यू इंटू कॉस, सेंट्रल एंगल आपने निकाल लिया है, इंटू डायमीटर डिवाइड बाई टू, ये आपका हुप टेंशन रेडी है, ठीक है। कि बीम पर हुप टेंशन कितना आ रहा है। अब मुझे इस टेंशन की वजह से एरिया ऑफ सील निकालना आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ सील, हुप टेंशन, टेंशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्ट्रेचेस की स्टील, क्योंकि मैं एरिया ऑफ सील निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिए एरिया ऑफ सील मतलब मीटर स्क्वायर। सील का एरिया किस पे डिपेंड करता है, सील का एरिया दो इस पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना आ रहा है या स्ट्रेस कितना आ रहा है या टेंशन कितना आ रहा है, जो भी एक चीज बोलो, फोर्स बोलो, स्ट्रेस बोलो, या टेंशन लोड कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। और परमिसिबल स्ट्रेस, ताकत कितनी है सील की, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, किलो न्यूटन यानी कि लोड, कितना लोड आ रहा है और कितनी ताकत है, ताकत मतलब परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है, इस पे डिपेंड करता है मेरा एरिया ऑफ सील, ठीक है। इसमें किलो न्यूटन कट के और मीटर स्क्वायर आगे ऊपर, यानी कि आपको एरिया ऑफ सील मिल जाएगा। समझ में आया। देखिए वापस से बोलता हूँ, एरिया ऑफ सील किस पे डिपेंड करेगा,
एरिया ऑफ स्टील डिपेंड करेगा उस पर लोड कितना आ रहा है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पर लोड कितना आ रहा है और स्टील की झेलने की ताकत कितनी है। लोड कितना आ रहा है और झेलने की ताकत कितनी है, उससे मुझे एरिया मिल गया। लोड मतलब किलोन्यूटन और झेलने की ताकत किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो किलोन्यूटन किलोमीटर कट गया, मीटर स्क्वायर मिल गया। दैट इज मेरा एरिया ऑफ स्टील मुझे मिल गया। अब देखिए हुक टेंशन आपका कितना था, 136.4 किलोन्यूटन में था, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और सिग्मा एस सी आपको पता है 150 फॉर एपी 415, तो आपका ए एस सी आ गया। अब बीम पे बीम का ए एस सी मिल गया आपको 9.34। अब बीम में आप बार बड़े भी डाल सकते हो, तो मैंने 16 mm का बार पकड़ा, नंबर ऑफ बार निकाल लिया, ए एस सी अपॉन ए एस सी ऑफ 1 बार, है ना। तो ये बार निकल गए, तो मुझे 5 बार लग रहे रिंग बीम में, ठीक है। देन प्रोवाइड 20 mm 5 बार, ठीक है। मैं 5 बार कैसे डालूंगा, ठीक है। तो मैंने 20 mm का बार लिया, तो पता चला 4 बार लग रही, तो मैं ये फाइनल कर दे रहा हूँ, प्रोवाइड 4 बार ऑफ 20 mm एज द मेन रेनफोर्समेंट इन द रिंग, ठीक है। अब रिंग बीम के रेनफोर्समेंट तो निकल गए, लेकिन डायमेंशन निकला क्या, नहीं। अब चलिए डायमेंशन पे बात करते हैं। डायमेंशन मतलब कंक्रीट का डायमेंशन, बीम का डायमेंशन मतलब कंक्रीट का डायमेंशन। तो कंक्रीट का डायमेंशन स्ट्रेसेस इन कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अब स्ट्रेसेस इन कंक्रीट आपको गिवन है, दैट इज 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। वापस से आपको एसी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इससे। एक चीज देखिए यहाँ पे, आपको सिग्मा सिटी कितना दिया हुआ है 1.2। देखिए आई एस कोड, आई एस 3370 बोलो या आई एस 2000 बोलो, दोनों में है कि सिग्मा सिटी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट अगर 1.2 दिया है मतलब ये M20 है, और 1.3 दिया है तो M25 है। तो आपको 1.2 दिया है मतलब आपको अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा सिटी इज 1.2। नाउ अगेन मैं एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है तो इट डिपेंड्स अपॉन कितना लोड आ रहा है और कंक्रीट की ताकत कितनी झेलने की, ठीक है। सही है ना। एरिया ऑफ कंक्रीट अगर निकालना है तो इट डिपेंड्स अपॉन कितना लोड आ रहा है, दैट इज टेंशन, और कितनी ताकत है उसको झेलने की, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा कि सिग्मा सीटी ऐसा लिख दिया, या तो सिंपली आप इसी को याद रखो, हुक टेंशन अपॉन सिग्मा सीटी, ठीक है। अब एरिया ऑफ कंक्रीट का खुद का भी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दैट फॉर्मूला इज बी डी, बी इंटू डी प्लस M-1 इंटू ए एस टी, बी इंटू डी प्लस M-1 इंटू ए एस टी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये सिग्मा सिटी को इधर ले जा लेता हूँ, ये देखिए, और एच टी को वैसे रख रहा हूँ, ए सी को नीचे ला ले रहा हूँ। तो सिग्मा सिटी की वैल्यू कितनी है आपकी 1.2, एच टी की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ए सी का फॉर्मूला बी डी प्लस M-1 इंटू ए एस टी, वो यहाँ लिख रहा हूँ, बी इंटू डी प्लस M-1, M13 गिवन है आपको, 13 - 1 इंटू ए एस टी 1256.64 जो आया है, ठीक है। अब इसमें क्या अननोन है, बी डी। कैलकुलेटर में इक्वेशन डालोगे आपको बी डी मिल जाएगा, बी इंटू डी यानी रेक्टेंगल की बीम है, की बीम है रेक्टेंगुलर, बी इंटू डी, ठीक है। अब इसमें आपको एक डायमेंशन तो अज्यूम करना पड़ेगा, तभी सेकंड डायमेंशन आएगा। तो कौन सा डायमेंशन अज्यूम करेंगे, हम विड्थ अज्यूम करेंगे। कितनी अज्यूम कर रहे हैं, विड्थ इज अज्यूम्ड एज 300 mm, तो आपको डेप्थ मिल जाएगा जो आया 350 mm। तो आपको पता चल गया साइज आपके रिंग बीम का 300 mm by 350 mm is the size of the ring beam. So this is completed with the second design, that is the design of ring beam. क्या किया इसमें, एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। सिंपल था, छोटा सा था, डिजाइन ऑफ रिंग बीम। जो थ्रस्ट आ रहा है उस थ्रस्ट को मैं कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। ये सेंट्रल एंगल को मैंने यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी वजह से मेरे बीम पर टेंशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हुप टेंशन। इसको आप हुप टेंशन बोलते हैं। हुक टेंशन का फॉर्मूला दिया हुआ है P इंटू डी बाई टू, वेर P इज
ये जो टेंशन क्रिएट करने वाला फोर्स है दैट इज टी कॉस थीटा इनटू डायमीटर डिवाइड बाय 2। आपने हुक टेंशन निकाल लिया। एरिया ऑफ स्टील निकालना कैसा है आपको मैंने समझाया। दैट इज कितना लोड आ रहा है अपन कितनी झेलने की ताकत है। ये आपका एएससी निकल गया। आप साइज ऑफ बार अज्यूम करें दैट इज 20 mm साइज। तो आपको पता चल गया 4 बार लग रही है। फाइनल कर लिया आपने। आपका रेनफोर्समेंट फाइनल हो गया तो आपने डायमेंशन भी फाइनल कर लिया। डायमेंशन कैसे फाइनल किया आपको अब डायमेंशन पे जाना है तो आपको कंक्रीट की स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इसकी हेल्प लगेगी। ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने किसका यूज किया एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू कितना लोड आ रहा है अपन कितनी झेलने की ताकत है कंक्रीट की। ठीक है। अब इसमें क्या किया सिग्मा सिटी को इधर ले लिया एसी को नीचे ले लिया। सिग्मा सिटी इधर एसी को नीचे। ठीक है। एसी का फॉर्मूला बी डी प्लस एन माइनस वन इंटू ए सी। ये फॉर्मूले को यूज किया। यहाँ पे बी इंटू डी निकल गया। बी को अज्यूम कर लिया डी निकाल लिया दैट इज साइज इतना हो गया और रेनफोर्समेंट इतने हो गए। ये मेरा फाइनल हो गया। अब मैं थर्ड डिजाइन पे जा रहा हूँ दैट इज डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल दैट इज दिस वन। ठीक है। अब सिलेंड्रिकल वॉल पे क्या आ रहा है वाटर प्रेशर आ रहा है। वाटर प्रेशर क्या करेगा यहाँ बल्ब क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब बल्ब पूरा क्यों नहीं आ रहा है बोल रहे होंगे आप क्योंकि यहाँ पे फिक्स कनेक्शन दिया हुआ है। आपको हमेशा फिक्स कनेक्शन यहाँ दिया ही रहेगा जिस वजह से ये सीधी रहेगी। ये पोर्शन सीधी रहेगी और इतने पे बल्ब आएगा यानी कि इतना फैलने की कोशिश करेगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू सब कंपाउंड्स द लोअर वन दैट इज h/4 ये वैल्यू। द लोअर वन इज कंसिडर्ड एज h/4 और 1 whichever is more is designed as a cantilever and remaining upper portion is designed as a hoop tension। यानी कि क्या बोल रहा है ये दो कंपाउंड की तरह या दो कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ फिक्सिटी दी हुई है। तो नीचे वाला पोर्शन किसकी तरह एक्ट करेगा एज ए कैंटिलीवर एज अ कैंटिलीवर इस तरीके से जिसका साइज कितना रहेगा आइदर h/4 या 1 मीटर विच एवर इज ग्रेटर। ये या तो h/4 रहेगा या 1 रहेगा जिस जो भी ग्रेटर है। और ऊपर का पोर्शन किस तरीके से एक्ट करेगा एज अ होप टेंशन एज अ होप टेंशन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ गया हो। आगे बढ़ सकते हैं। हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 2.2। h/4 कितना होगा 0.5 या 1 मीटर विच एवर इज लो विच एवर इज ग्रेटर। तो हम नीचे का पोर्शन कितना रखेंगे 1 मीटर। करेक्ट। ये देखिए यहाँ रख दिया 1 मीटर। एक कंपोनेंट हो गया और दूसरा कंपोनेंट 2.2 में से 1 माइनस कर दिए तो 1.2 बचा। ठीक है। यहाँ स्टार्ट कर रही डिजाइन ऑफ अपर सिलेंड्रिकल वॉल। ऊपर की सिलेंड्रिकल वॉल को डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए फॉर होप टेंशन। फॉर होप टेंशन यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको पता है। अब मैंने ये सिलेंड्रिकल वॉल बनाया ये बेस स्लैब बनाया। यहाँ पर मैंने वाटर प्रेशर निकाल लिया। वाटर प्रेशर आपको निकालना आता है। बेस पर प्रेशर कितना रहेगा सॉइल का वेट अपॉन कितनी हाइट तक सॉइल है सॉरी वाटर का वेट अपॉन कितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है। आपको काम किस पे कर रहे हो आप सिर्फ ये अपर पोर्शन पर है ना। तो मैं अपर पोर्शन की भी ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा ये निकाल लेता हूँ। उसके लिए हाइट कितनी लगेगी 1.2। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 1.2 दैट इज 11.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ आपको। तो बेस ये वाला नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं दो कंपोनेंट में डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे 1.2 मीटर हाइट है वहां पर बेस बनाया हूँ और वहां पे प्रेशर निकाला हूँ वाटर का। ठीक है। अब हुप टेंशन में आ जाते हैं। आपको वापस से पता है हुप टेंशन का फॉर्मूला क्योंकि इस पर हुप आने वाला है ना ये ऐसा धक्का आने वाला है। तो हुप टेंशन का फॉर्मूला इज PD/2। PD/2 वेयर धक्का कितना आ रहा है मैक्सिमम 11.76। यहाँ पे कम रहेगा यहाँ पे और भी कम यहाँ पे और भी कम। सबसे ज्यादा किधर है तो सबसे ज्यादा यहीं पर है नीचे दैट इज 11.76। तो पी की वैल्यू 11.76 डायमीटर का आपको पता है दैट इज 13 और ये 2। तो ये एच टी दैट इज हुप टेंशन की वैल्यू आ गई 76.52। अब यहाँ देखिए एक चीज क्या हो रही है जब आप फोर्स ले रहे हो दैट इज 11.77 तो फोर्स के फॉर्म में नहीं है अभी प्रेशर के फॉर्म में दैट इज किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
फोर्स के फॉर्म में या लोड के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको किलो न्यूटन पर मीटर करना पड़ेगा। करेक्ट है, किलो न्यूटन पर मीटर करना पड़ेगा एटलीस्ट, तभी वो यूडीएल के फॉर्म में आएगा। करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए आपने क्या कंसिडर किया है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू 1.2, ठीक है, ये कंसिडर किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रेशर निकाल लिया है। अब आपने सिर्फ हाइट कंसिडर किया, लेकिन पीछे कितना पानी जम रहा है वो आपको नहीं पता है। तो मैं कितना कंसिडर कर लूँ, तो पीछे 1 मीटर पानी जमा हुआ है। ठीक है, 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ 1 मीटर वाटर, 1 मीटर लेंथ ऑफ वाटर बोलना चाहिए, 1 मीटर लेंथ ऑफ वाटर, तो वो 11.76 किलो न्यूटन पर मीटर बन जाता है। तो ये 11.76 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 13 मीटर डिवाइड बाई 2, तो दैट वे 76.52 किलो न्यूटन। अब आपके पास एच टी है, यानी कि हुप टेंशन, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, एच टी अपॉन सिग्मा एच टी, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते थिकनेस ऑफ वॉल। एरिया ऑफ स्टील तो आपने निकाल लिया, अब थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की थिकनेस मतलब डायमेंशन ऑफ अ वॉल, डायमेंशन ऑफ वॉल मतलब इसमें किसका रोल आएगा, सीटी का, सिग्मा सीटी का, स्ट्रेचेस इन कंक्रीट का। तो वापस एरिया ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला लगाओ, एच टी अपॉन सी टी, और एरिया ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला आपको पता है, बी डी प्लस एम माइनस वन अपॉन ए एस टी, लेकिन यहाँ बी डी आएगा क्या, नहीं, थिकनेस ऑफ स्टील, थिकनेस ऑफ वॉल निकाल रहे हो आप, निकाल रहे हो आप, तो थिकनेस ऑफ वॉल के लिए बी इंटू टी आएगा, डी यहाँ पे है नहीं। करेक्ट है, क्योंकि आप वॉल पे काम कर रहे हो, वॉल में बी दैट इज विड्थ, कितनी विड्थ है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, और ये थिकनेस। करेक्ट है, तो लंबाई कितनी पकड़ूंगा मैं, 1000, क्योंकि घुमा हुआ है ना, सिलेंड्रिकल है वो, तो उसकी लंबाई तो मुझे पता नहीं, तो और थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा सी टी की वैल्यू डाल दिया, हुक टेंशन की वैल्यू डाल दिया, बी टी में बी की पता है, टी की नहीं पता है, एम मतलब 13, ए एस सी अभी निकाला आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। टी इतना आया, मैंने राउंड अप कर लिया ऊंचे साइड पर, दैट इज 100 mm, क्योंकि मिनिमम टी जो है 100 mm ही होता है, तो मैंने 100 mm ले लिया। ठीक है, अब वेरिएशन इन हुप टेंशन, हुप टेंशन में वेरिएशन जो आ रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, यानी कि हुप टेंशन हर जगह अलग अलग रहेगा, यहाँ पे हुप टेंशन जीरो रहेगा, यहाँ पे हुप टेंशन जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हुप टेंशन मैक्सिमम रहेगा। करेक्ट है, तो यहाँ का हुप टेंशन जीरो, आधे आधे 0.6 पकड़ो इसको, आधे साइज पर कितना रहेगा वो निकाल लो, और 1.2 पे कितना रहेगा वो निकाल लो। 1.2 पे तो आपको पता है कि स्ट्रेस कितना आ रहा है या प्रेशर कितना आ रहा है, दैट इज 11.77, आपने निकाल चुके हैं, गामा डब्ल्यू इंटू 1.2, यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू 0.6 करो, वैल्यू निकालो, और यहाँ गामा डब्ल्यू इंटू जीरो दैट इज जीरो। करेक्ट है, ए सी मिनिमम 0.24% बी इंटू टी, बी इंटू टी, तो आपने ए एस टी मिनिमम फॉर एफ ई 250 ले लिया, 0.24% बी टी। ठीक है, इससे आपने वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 240 mm स्क्वायर, इतना एस टी मिनिमम है आपका। आपके एक्चुअली एस टी से चेक कर लो, तो आपका एक्चुअली एस टी बड़ा है, एस टी मिनिमम छोटा है, तो दैट इज ओके। अब हुप टेंशन को मैं वेरिएट कर रहा हूँ, यानी कि एक तरह से मैं रेनफोर्समेंट को कर्टेल ही कर रहा हूँ। ठीक है, देख क्या कर रहे हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर 0.6 और 1.2, हुप टेंशन वहां पे अलग अलग जीरो, फिर अ, ये वाले इस पर हुप टेंशन आपको निकालना है, तो हुप टेंशन निकालने का पी डी बाई टू से निकाल लोगे तो 31.8, और 1.2 पे तो निकाल चुके हो 76.52। ए एस टी, यहाँ पे ए एस टी कितना आएगा, एच टी अपॉन सिग्मा एस टी, तो एच टी तो जीरो है, तो सिग्मा एस टी जीरो अपॉन सिग्मा एस टी करूंगा तो जीरो ही आएगा, लेकिन ए एस टी जीरो तो डाल नहीं सकता, मिनिमम डालना पड़ेगा, दैट इज 240 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए एस टी लो, तो एच टी अपॉन सिग्मा एस टी करने से वैल्यू आती है 212, दैट इज लेसर देन सिग्मा ए एस टी मिनिमम, तो हम ए एस टी मिनिमम को फाइनल करेंगे, और यहाँ का ए एस टी का आपने निकाल चुके 512.1
1 2, बस वही वैल्यू रखेंगे। फाइव, मैं एक वॉल में या स्लैब बोलो, वहाँ पे रेनफोर्समेंट का साइज क्या रखूंगा, 8 mm रखूंगा, करेक्ट है। तो स्पेसिंग निकल गई 200, 200 और 90। ठीक है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के हिसाब से यहाँ पे आपका हुक टेंशन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ की स्पेसिंग कितनी है, 90। यहाँ 200 लग रहा है, तो मैं 180 प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी इसका डबल। और सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ के ये एएससी के हिसाब से 90 mm सेंटीमीटर सेंटर, और एएससी मिनिमम के हिसाब से 200 लग रहा है, लेकिन मैं कम स्पेसिंग पर यानी कि इसके डबल पर 180 पर अपना रेनफोर्समेंट को स्पेस करूंगा, और सेम यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आया, जब मैं रेनफोर्समेंट यहाँ डालूंगा तो ये हाइट पर, ये हाइट तक मैं पूरे 90 mm के इस पर ब्रेथ को भरते चला जाऊंगा एट 90 mm सेंटर टू सेंटर। और फिर जब ऊपर जाऊंगा तो एक को सीधा ले जाऊंगा और एक को छोड़ दूंगा, दूसरे को सीधा ले जाऊंगा, और फिर दूसरा छोड़ दूंगा, तीसरे को सीधा ले जाऊंगा, चौथा छोड़ दूंगा, पांचवा को सीधा ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपने रिटेनिंग वॉल में किया था, बस वैसे ही करूंगा। ये देखिए, एएससी मिनिमम का फॉर्मूला, सॉरी, फॉर एपी 415, फॉर थिकनेस अप टू 100 mm, फॉर थिकनेस less than equals to 100 mm, formula for AP45, the formula for ASC minimum is 0.24% BT, 0.24% BT, whereas for greater than 400 mm size, 400 बोलो या greater than 400 mm, तो for AP415 ASC minimum is 0.16% BT। तो आपको याद रखना है 0.24% BT is the ASC minimum for AP415 and for thickness 100 mm। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजाइन ऑफ टैंक वॉल सेक्शन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, जो नीचे की 1 मीटर की साइज की बची हुई टैंक वॉल, उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। सिग्मा सीबीसी इसका काम आने वाला लिख दिया, सिग्मा एससी का काम आने वाला है, मॉड्यूलर रेशियो का काम आने वाला है, तो इन सबको लिख दिया। ठीक है, नाउ एक के करके टर्म है जो आपको काम आने वाला है, वो हम निकाल ले रहे हैं। के इज न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है आईएस 3370 में वाटर टैंक के डिजाइन में, 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। इसमें सब कुछ आपको पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सीधा, दैट इज 0.38। नाउ लीवर आर्म कांस्टेंट करके भी एक टर्म है, वो भी आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला है 1 - k/3, जो आप निकाल लोगे सीधा सीधा। फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर दैट इज क्यू, उसका फॉर्मूला गिवन है, हाफ के जे सिग्मा सीबीसी, हाफ के जे सिग्मा सीबीसी, उसकी वैल्यू निकाल लोगे। ये तीनों आपको कहीं काम आने वाले हैं कि चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिजाइन ऑफ टैंक, वो क्या बोल रहा है, आप ये सब ना निकालो पहले, डायरेक्टली आप यहाँ आ जाइए। डिजाइन ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट, कितना मूवमेंट आने वाला है, कैंटिलीवर है ना, तो मूवमेंट तो आएगा, ये मूवमेंट क्रिएट करेगी, तो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, तो डिजाइन कर रहे हो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए, ये 2.2 मीटर ये मेरी लेंथ है। वाटर प्रेशर बना लिया, गामा डब्ल्यू इंटू एच। इससे एक्टिव प्रेशर कितना आ रहा है, लैटरल प्रेशर, ये लैटरल प्रेशर की वैल्यू कितनी रहती है, एरिया ऑफ फिगर दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट आपकी 2.2, आगे आपका पी 23.74, विच एक्ट्स एट h/3, ठीक, दैट इज 0.73। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना आने वाला है, 23.74 इंटू 0.73, 23.74 इंटू 0.73। ठीक है, दैट मेक्स द मैक्सिमम मोमेंट एज 17.4। नाउ डेप्थ और थिकनेस एट बेस, डेप्थ और थिकनेस एट बेस, यानी कि थिकनेस एट बेस, ये थिकनेस कितनी रहेगी आपके वॉल की,
So there is a formula given, d is equal to अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू बी। यहाँ आपको ये क्यू बी काम थी, ठीक है। या आप डायरेक्टली ये देखिए यहाँ लिखा हुआ हाफ के जे सिग्मा सी बी सी, या आप जो आपने निकाल चुके हो। तो आप डायरेक्टली डी का फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू बी लगाओगे। ये आपके काम का नहीं है, ये सब नहीं करना, डायरेक्टली आप ये यूज करना। डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू बी, वेर क्यू आपको पता है, आपने डाल देना सीधा सीधा, ठीक है। मोमेंट आपका रेडी है 17.4 10 to the power 6, ठीक है। और बी कितना लेंगे आप, बी इज योर 1000 वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये डी मिल जाएगा। डी इज द थिकनेस, जो कितनी आ रही है आपको, इतनी ही मिलेगी 125। आप 125 में एक कवर ऐड करोगे, दैट इज कवर इज मैक्सिमम ऑफ 25 mm या डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर ऑफ बार कितना ले रहे हो, 8 mm। तो आप ये कवर कितना लोगे, 25 mm का। 125 प्लस 25 इक्वल टू 150। आपका कैपिटल डी निकल जाएगा 150 और स्मॉल डी निकल जाएगा 125, जो कि पहले ही आया है, करेक्ट है। तो दिस इज द थिकनेस एट बेस। तो आपकी थिकनेस कितनी आई, 150 mm, कैपिटल डी। और एक तरीका है डी निकालने का, दैट इज 30h प्लस 5 सेंटीमीटर। 30 और h रहेगा मीटर में, तो 30 इंटू 2.2 दैट इज द डेप्थ ऑफ वाटर प्लस 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला देखिए कैसे, 30 इंटू एच, एच विल बी इन मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विच विल गिव यू द वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो 30 इंटू 2.2 प्लस 5, वैल्यू आई 11.6 सेंटीमीटर, मतलब 116 mm। तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप कंसिडर कर लोगे। आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 150 mm। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डी तो नीचे का 150 mm है और ऊपर का 100 mm आई थिंक, चेक कर लेते हैं। आपकी थिकनेस है 100 mm, ये देखिए 100 mm आपकी थिकनेस है। ऊपर की वॉल पर ये वॉल आपकी 100 mm की रहेंगी और नीचे की वॉल कितनी रहेगी, 150 mm। तो स्टूडेंट से क्लियर है आपको, क्योंकि नीचे मोमेंट आ रहा है, ये मोमेंट के हिसाब से अगर डेप्थ निकालते हैं यानी अंडर रूट ऑफ एम क्यू बी करके, एम अपॉन क्यू बी करके, तो डेप्थ मिल रही है 150 mm। नाउ रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। Reinforcement calculation. Area of seal in the form of vertical bar is computed by the formula area of seal in the form of vertical bars. Obviously vertical bars ही रहेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि आप वॉल में डाल रहे हो, तो vertical bars are computed by the formula AST upon M sigma ST into JD, ठीक है, M upon sigma ST into JD, where AST M is your moment 17.31 10 to the power 6, sigma ST 150, J आपने निकाला है, और डी जो रहेगा आपका, देखिए 150 माइनस 25 करो तो आपको 125 आएगा। या इफेक्टिव कवर 20 mm का लो बोल रहा है, इफेक्टिव कवर इज 20 mm, ठीक है। तो बस ठीक है, 20 mm का इफेक्टिव कवर ले रहे हैं, तो सिग्मा एस टी जे और इफेक्टिव कवर हटा दिया तो स्मॉल डी आ गया, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ 130। ए सी की वैल्यू निकल गई, ए सी निकल गया, आपने बार
सॉरी, एएससी आपने निकाल लिया है और आपने स्पेसिंग भी निकाल चुके हैं। स्पेसिंग भी आपने निकाल चुके हैं। बस बार का डायमीटर निकालना बचा हुआ है। यहाँ देखिए आपने स्पेसिंग हुप वेरिएशन इन हुप टेंशन में निकाल चुके हो। यहाँ देखिए हुप टेंशन जो आ रहा था वो है, ठीक है ना। उस हुप टेंशन के हिसाब से ये चीज निकाल लिया, उनका बार का डायमीटर ले लिया था आपने और उनके हिसाब से आपने स्पेसिंग निकाले थे कि यहाँ से जो बार चालू होगा वो 90 mm का होगा और ऊपर जाके वो 180 चलेगा। यहाँ से 90 रहेगा और फिर 180 पे चले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नीचे का क्या, नीचे भी निकाला आपने एएसटी। अब आप स्पेसिंग को मेंटेन कर रहे हो क्योंकि ऊपर वाले बार से नीचे वाले बार को जोड़ना है। जो नीचे वाले बार की लिए वही स्पेसिंग कंसिडर करना पड़ेगा जो ऊपर के बार स्पेसिंग है, यानी कि 90 mm, है ना। और फिर नीचे वाले बार ऊपर वाले बार के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपका ये एएससी आ गया। आपकी प्रोवाइड करना पड़ेगा स्पेसिंग 90 mm क्योंकि आपके ऊपर के जो बार है उनसे आपके नीचे के बार जुड़ने चाहिए। तो 90 mm स्पेसिंग आपको कैंटिलीवर वॉल में कंसिडर करना पड़ेगा जो आपको हुप टेंशन वाली वॉल में आपने मेंटेन किया। तो स्पेसिंग के हिसाब से मैं बार का डायमीटर निकाल ले रहा हूँ। स्पेसिंग इक्वल्स टू एएससी 1 बार अपॉन टोटल एएससी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आपका बार डायमीटर आ गया 12 का। अब आप क्या करोगे, जो आपकी वॉल है उसका नीचे का पोर्शन 1 मीटर और फिर उसके बाद आपकी ये वाली जो है ये हुक टेंशन वाली वॉल है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो बार डालोगे, ऊपर के बार क्या है 90 की स्पेसिंग से चल रहे हैं लेकिन 8 के, नीचे के बार की 90 की स्पेसिंग है लेकिन ये आपका 12 mm का आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये 12 mm का बार डालोगे, थोड़ा सा ऊंचा लोगे और ये 8 mm के बार से टाई कर दोगे। 12 mm का बार लोगे, थोड़ा आगे ले लोगे और ये 8 mm के बार से टाई अप कर दोगे। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको। तो हमने फाइल ले लिया 12 mm, तो एएसटी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एएसटी प्रोवाइडेड, आपके पास स्पेसिंग है, आपके पास डायमीटर है, तो बस स्पेसिंग इज इक्वल टू एएसटी ऑफ 1 बार अपॉन टोटल एएसटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये स्पेसिंग का ही फॉर्मूला यूज किया तो एक्चुअली एएसटी आपको पता चल गया 125 है। तो hence provide 12 mm phi at 90 mm center to center at water phase in the bottom 1 meter height of the tank। आपको ये कहाँ लगाना है, वाटर फेस पे, याद रखिए। इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में आपको भी दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इज एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू एएसटी मिनिमम 0.24% बी इंटू टी, दैट इज 150। तो एएसटी मिनिमम आ गया आपका बार 8 mm का। स्पेसिंग निकाल ले रहे हो तो पता चला 130 mm is the spacing। That is it about the design of tank wall। Now last part is design of base slab। कुछ भी नहीं करना है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब में, बहुत सिंपल है। देखिए कुछ डिजाइन पार्ट है ही नहीं इसका। Since tank floor is resting on the ground throughout, जो कि आपकी टैंक सीधा सीधा रेस्ट कर रही है ग्राउंड के ऊपर थ्रू आउट, hence provide nominal thickness of 150 mm as the base slab। बेस स्लैब की नॉमिनल थिकनेस रखो 150 mm क्योंकि इस पे ही तो बैठ रही है। और इसका एएससी भी मिनिमम ही रखेंगे अपन क्योंकि ये सीधा सीधा ग्राउंड पे बैठ रही है। तो एएससी मिनिमम इक्वल टू 0.24% बी इंटू टी। टी आपने कितना लिया, मिनिमम 150 mm नॉमिनल। तो ये एएससी मिनिमम आ गया, 8 mm का बार ले लिया। तो स्पेसिंग निकाल लोगे, दैट इज 130 mm सेंटर टू सेंटर आ गया वापस से।
आप यहाँ लिखोगे hence provide 8 mm phi at 130 mm center to center at top and bottom of the base slab। ठीक है, इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी आपका रेनफोर्समेंट आया है नीचे और ऊपर दोनों जगह लगाएंगे। द फ्लोर स्लैब will rest on 75 mm thick layer of lean concrete covered with a layer of tar felt। क्या बोल रहे हैं, आपका जो फ्लोर स्लैब है, फ्लोर स्लैब यानी कि बेस स्लैब will rest on 75 mm thick layer of lean concrete। आप क्या करोगे, इस बेस स्लैब को एक कंक्रीट की पीसीसी पे बिठाओगे, 75 mm की पीसीसी रहेगी उस पर। 75 mm थिक लेयर ऑफ लीन कंक्रीट जो कवर्ड विद अ लेयर ऑफ टार फेल्ट, जिसके नीचे टार डला होगा, टार फेल्ट डला होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है, 280। डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81। ठीक है, तो वेट कितना आ रहा है वो निकाल। वेट का फॉर्मूला सीधा सीधा देख लो आप, सॉरी लोड, लोड निकाल रहा हूँ। लोड का फॉर्मूला आपको ये मीटर क्यूब काट देना है, तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका लोड आ गया। ठीक है, अब लोड को प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ टैंक, 5/4 13 स्क्वायर, तो ये आपका प्रेशर आ गया। दिस इज द प्रेशर दैट इज कमिंग ओवर द बेस स्लैब, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट योर डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। अब इसके हम रेनफोर्समेंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये लीन कंक्रीट डाल दिया, ये टार फिल्ट डाल दिया, उसके ऊपर अपना बेस स्लैब है। बेस स्लैब के ऊपर, बेस स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, यानी कि एएससी मिनिमम है 8 mm का 130 mm से डेढ़ सेंटर। तो ये लंबा चलाएंगे और टेढ़ा भी, आड़ा भी डालेंगे, वैसे ऊपर भी करेंगे, लंबा चलाएंगे और आड़ा भी डालेंगे। ये हो गया रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बेस स्लैब। अब आते हैं हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ अ टैंक वॉल, टैंक वॉल। तो टैंक वॉल का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसा है आपका, ये देखिए, ये जो बार है ये आपका 12 mm वाला जो बार है, 90 mm सेंटर टू सेंटर, इसको मैं थ्रू आउट चला रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए मेरे 12 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो बार है, देखिए इसने बोला था वाटर फेस पे डालना है इसको, क्योंकि यहीं से बेंडिंग स्टार्ट होगी, तो यहीं पे बार डाल देना पड़ता है। और हुक टेंशन ऐसा आने वाला है, यानी टेंशन कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो इसके रेनफोर्समेंट भी बाहर लगाना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने डाल दिया रेनफोर्समेंट बाहर पे। इसके वेरिएशन है, तो नीचे कितना है, 8 mm, 8, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन यहीं से तो नहीं रखे, नीचे तक ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये बार 90 mm सेंटर टू सेंटर चलेंगे अप टू यहाँ, करेक्ट है। ये वाले बार लॉन्ग बार 8 mm सेंटर, 8 mm फाइव 90 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ तक, और ऊपर 8 mm फाइव 180 mm सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ तक इसमें बीम के अंदर जाएगा वो। ठीक है, और इसके जो ट्रांसफर एनफोर्समेंट है वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 8 mm फाइव एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। आई होप इनसे क्लियर है आपको। आगे चलते हैं हम अपने रिंग बीम के रेनफोर्समेंट पर, जो कि कितने के आए थे, आई थिंक 16 20 के, 20 के 4 बार आए थे ना। तो हमने ये 20 के 4 बार डाल दिया और उनको सिरप से टाई कर दिया। ये जो मेरे मेन रेनफोर्समेंट है इनको लाया, इसको इससे टाई कर दिया, और इसको लाया इधर ला के इधर टाई कर दिया। ठीक, अब मेरा बचा सिलेंड्रिकल स्फेरिकल डोम का अरेंजमेंट। तो स्फेरिकल डोम के नीचे में रेनफोर्समेंट लगाते हैं, उसको ऐसे नीचे से लेकर आते हैं और इसको आप इधर लाके छोड़ देते हो, या तो आप इसको क्या करते हो, ऐसा लाते हो, इसको यहाँ से इसमें मिलाकर आगे ले जाके इधर टाई कर देते हो। ये रेनफोर्समेंट आपने निकाल चुके हो, दैट इज 8 mm फाइव एट 200 mm सेंटर सेंटर ऑन बोथ वेज, यानी कि सरकमफ्रेंशियली भी
और रेडियली भी, ये रेडियल जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आप लोग को, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। With this, we have completed the syllabus of our advanced concrete structure subject. Thank you very much.